Hey, hi. So, welcome to another new chapter in class 10th maths. So, yeah, the title says 11th maths, so I'm doing 11th maths course also. But today we are going to talk about 10th maths, right? So, we are going to start a new chapter named as polynomials. Now, it's a part of algebra. In class 10th boards, the algebra is for 20 marks. So, 20 marks की algebra है, तो you can approximate say 5 to 6 marks का polynomial आएगा ही आएगा. Okay. अब एनसीईआरटी में बस 2 exercises are there which are not at all enough. समटाइम्स एनसीईआरटी से आता ही नहीं है, तो हम इतना उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे. नाइन्थ का भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है पॉलिनोमियल, तो नाइन्थ में भी देयर वाज पॉलिनोमियल. So just like in chapter number 1 we did from ninth, here also we are going to review the ninth class, then we are going to continue. Okay, the first question that should come in our mind is what is a polynomial? Polynomial. What is a polynomial? So you may have heard in class ninth only an algebraic expression in which the power of the variable is a whole number. Remember, this was the first exercise, the second chapter in our class ninth also. Algebraic expression in which the power of variable is whole number. ये सब आना चाहिए बच्चे क्लास नाइन्थ का भी. बोर्ड में आपसे नाइन्थ का भी पूछता है, एमसीक्यूज में, इन सब में. तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ जैसे ये, तो यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर, सो इट इज अ पॉलिनोमियल. बट इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस, नाउ दिस गाय is not a polynomial. Why? Because x raised to power half here, right? So that means it's in fraction, it should be a whole number, 0 se leke something like that, right? It cannot be like this also, because here the power is x raised to power minus 1. So this is also not a polynomial because power is negative. It can only be a whole number. So I hope that is clear what is a polynomial. Now talking about polynomial, we have to talk about more things. Types of polynomial. Before we come to types of polynomial, there is something called 3 or 2 or any kind of a number. These numbers are called constant polynomial. Constant polynomial. We'll talk about degree and everything later, but first of all of these things. And if I have 0 written, that is called zero polynomial. Polynomial. Now, what is the degree? Since it's class 9th, we are revising, so I'm going to move quickly. If you want to do this in depth, you can check out our class 9th playlist. Degree. Degree is nothing but power of the variable, highest power of the variable, highest power of the variable, power of variable. For example, if it have 2x cubed plus 2x square, where the highest power is 3, so degree is 3. We have done this in 9th, but we are revising. But if we have, let's say, 2, now degree here is छुपी हुई है यहाँ पे degree. तो x की power 0, so degree is 0. So that means we can say that the constant polynomials have degree as 0. Sorry, degree 0, 0. Degree as 0. So all the constants polynomial degree is 0. But if I have 0, what is the degree of 0? The degree of 0, yes, that is going in your mind. 0 degree is not defined. Degree of 0 polynomial is not defined. Is not defined. Why is that so? Because you can write 0 as so many ways. 0x to the power 0, 0x to the power 1, 0x to the power 2. Every time we are going to get 0 only. So which one is it? We don't know. So that means it is not defined. It is not defined. The degree of 0 is not defined. That was 0. Now coming to types of polynomial. Types of polynomial. Class 9th का जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं. Types of polynomial. अगर एक टर्म होता है, one term, तो it is called monomial. If there is one term, let's say 2x. If it has two terms, it is called binomial. If it has two terms. And if it has three terms, it's called trinomial. Right? Trinomial. So that was types of polynomial on the basis of number of terms. On the basis of degree. Types of polynomial on the basis of degree. ये सब आपकी क्लास 9th के नोट्स में आपको मिल जाएगा. ओके, डिग्री के बेस पे. तो अगर डिग्री 1 है, तो डिग्री के 1 पे क्या होगा? डिग्री 1 पे क्या कहते हैं? लीनियर. डिग्री अगर मेरे पास 2 है, तो इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक. रेटिक. और डिग्री अगर मेरे पास 3 है, तो इसे कहते हैं क्यूबिक. राइट? तो आपने ये सब मेरे से क्लास 9 के पोर्टल में भी पढ़ रखा है. ये लिस्ट आपके पास मिल जाएगी इसी चैनल पे. ओके. उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है. सेकंड एक्सरसाइज में क्लास 9 की वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब, जैसे देयर इज अ पॉलिनोमियल. ठीक है, तो ये प्री रिक्वायरमेंट है, ये सब आना चाहिए पहले आपको क्लास 10 की स्टार्ट करने से पहले. एट एक्स इक्वल टू 2 पे निकालना है, तो पॉलिनोमियल वेरिएबल एक्स, तो इसमें वैल्यू 2 डाल दो एक्स की जगह. इसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी.
सो 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 दैट इज 2 की पावर 4 कितना होता है 16, राइट, और 8 16 एंड 4 दैट इज 20। इसे कहते हैं वैल्यू निकालना, बस वैल्यू प्लग इन कर दो। देन देयर वाज अनदर थिंग कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि जीरो निकालो, जैसे x प्लस 5 का जीरो क्या होगा, इक्वल टू जीरो रख दो। इसे कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, वो वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करे, राइट। जैसे 2x प्लस 1, इसका जीरो क्या होगा, जीरो रख दो। So x की वैल्यू माइनस हाफ, so this is the zero of the polynomial. So that is what is meant by zero polynomial. उसके बाद आपने रिमाइंडर थ्योरम करा था, अगर आपको याद है, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम भी किया था। रिमाइंडर थ्योरम में आपने ये पढ़ा था कि अगर मान लो एक पॉलिनोमियल है, जैसे मेरे पास पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, और इसको मैं x प्लस वन से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं सीधा डिवाइड कर सकता हूँ। कैसे, x प्लस वन को इक्वल टू जीरो था, तो मेरा जो रिमाइंडर होता है वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, p के अंदर a की वैल्यू को प्लग इन करके। a क्या होता है, जब इक्वल टू ये निकालते हैं, इसको ही a कहते हैं। तो अगर मुझे इसको डिवाइड कर रिमाइंडर पता करना है, तो पॉलिनोमियल के अंदर मैं क्या करूंगा, माइनस वन डाल दूंगा, तो सीधा रिमाइंडर आ जाएगा, लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं। ये हो गया माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। So minus 1 का cube is minus 1, this is positive, this is again minus 1, everything is cancelling out, right? So this will be 0. तो plus 2 minus 2 will be 0. और अगर रिमाइंडर 0 होता है तो हम इसे कहते थे उसका फैक्टर है, याद होता है, कुछ वही फैक्टर थ्योरम था। तो ये भी आपने क्लास 9 में मेरे साथ पढ़ रखा है। ओके, आफ्टर दिस वी हैव डन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। हालांकि मैं इस चैप्टर में आपको डिटेल में फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी बेसिक वाली एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आई नो ये सब आपको आता है, फिर भी हम एक बार जल्दी से रिव्यू करें। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। अगर मेरे पास ये है ए एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, तो ये किसके बराबर होता था बच्चे, ये होता था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। और अगर मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। याद आ रहा होगा आपको ये सब। और अगर आपके पास ए क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो वो क्या होता है प्यारे बच्चे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी। अगर मेरे पास a माइनस बी का होल क्यूब है, तो क्या होता था प्यारे बच्चे, क्लास 9 का सारा रिव्यू करें जल्दी से, माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी। अगर मेरे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये पूरे पे अलग अलग है, तो ये क्या होता था, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर मेरे पास होता था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस वाज व्हाट, दिस वाज ए माइनस बी, राइट, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता था। अगर आपको ये याद है, ये वाला एक्स क्यूब प्लस वाई, सॉरी, मेरे को आप कमेंट में बताएंगे कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है और माइनस थ्री ए बी सी है, तो ये किसके बराबर होता है, ठीक है। ये भी आपने पढ़ रखा है, थोड़ा सा हिंट देता हूँ, स्टार्ट ऐसे होता है, ठीक है। इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है, माइनस ए बी, चलो मैं लिख के देता हूँ क्या ये आप बता रही है, मैंने लिख दिया, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, राइट, दिस विल बी। अच्छा, अब इसको एक और तरीके से लिखते थे बाय द वे, अगर आपको क्लास 9 के पोर्टल में देखना, यहीं पे एक और तरीका होता है इसको लिखने का, कि आप इसको हाफ ए प्लस बी प्लस सी, फिर इसका डेरिवेशन भी आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लेकिन अभी हम ऐसे करें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। सर ये सब पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए भाई। ये सारे आइडेंटिटीज प्री रिक्वायरमेंट, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, इस आइडेंटिटी एक पेज पे लिख सकते हैं इनको बढ़िया से, ये आपके नोट्स में होनी चाहिए क्लास 10 के। अब क्लास 10 का पॉलिनोमियल स्टार्ट करें, क्लास 9 का है तो कैसे बात चलेगी, राइट। अब हम क्लास 10 का स्टार्ट, क्लास 10 का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस, आपको पता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, लेकिन हमें ज्योमेट्रिक मीनिंग मतलब ग्राफ वाइज समझना है। देखिए अब क्या होता है जीरो, जीरो का मतलब पहले समझते हैं। जीरो वो होता है जो वैल्यू को सेटिस्फाई करे, जैसे एक्स प्लस फाइव, जो बाय द वे एक्स प्लस फाइव को हम ऐसे भी सोचते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, क्योंकि यहाँ पे एक्स इंडिपेंडेंट होता है, वाई डिपेंडेंट होता है एक्स पे। तो जो आप ये पी एक्स करके लिखते हैं ना, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, ये कुछ नहीं, आप इसको ऐसे करके लिखते हैं कि ये वाई मान लिया, वाई इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, ठीक है। हमेशा ऐसे पढ़ा जाता है एक्चुअली, ठीक है, जिसमें वाई डिपेंडेंट होता है और एक्स होता है इंडिपेंडेंट, क्योंकि एक्स की वैल्यू डालेंगे तभी वाई आएगा। तो आप जब भी जीरो निकालते हैं, आप एक्चुअली क्या करते थे, इक्वल टू जीरो रखते थे क्लास 9 में, तो एक्स की वैल्यू माइनस फाइव आती थी। तो आप एक्चुअली जीरो किसको रख रहे हैं, आप एक्चुअली वाई को जीरो रख रहे हैं। जब भी आप y को जीरो रखते हैं, आपके पास सॉल्यूशन आ जाता है, राइट। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस या फिर सॉल्यूशंस,
या फिर रूट्स और कॉलम, बात एक ही है, सबकी बात एक ही है। तो आप सॉल्यूशन कभी भी निकालना है तो आपको क्या करना होता है, y इक्वल टू जीरो। जैसे आपने कभी भी देखा होगा, आप जब मिल्टन स्प्लिटिंग करते हैं आपके पास दो फैक्टर आते हैं, आपको याद है कि आप दोनों को इक्वल टू जीरो रखते हैं बाद में, क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर कभी भी जीरोस निकालने हैं तो आपको y को इक्वल टू जीरो रखना पड़ेगा। ये कुछ नहीं है, y ही है। ठीक है। अच्छा, तो ऐसा है तो अब ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफ वाइज देखते हैं। अच्छा, क्या आपको पता है कि y कहाँ जीरो होता है? एक्स एक्सिस पे जीरो होता है। अगर एक्स एक्सिस पे जीरो होता है तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल टू जीरो। शाबाश। दैट मीन्स कि अगर हमें चेक करना है ग्राफ से कि सॉल्यूशन कहाँ होंगे, तो वो एक्स एक्सिस पे होंगे। जहां भी एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा वो इसके सॉल्यूशन होंगे। जैसे अगर मैंने बोला कि ये ग्राफ है, लेट्स से दिस इज अ ग्राफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स प्लस फोर का ऐसा कुछ ग्राफ है। तो अगर ये यहाँ पे मान लो यहाँ पे कहीं टच कर रहा है, ये यहाँ पे टच कर रहा है 4,0 पे, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जहां पे भी टच करेगा, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो जहां पे भी अब अगर लीनियर है, पहले लीनियर के सॉल्यूशन की बात करते हैं। लीनियर हमेशा तुम्हें स्ट्रेट लाइन देगा, ये याद है। लीनियर का मतलब इसकी डिग्री वन होती है। जैसे अब ये भी मैंने लिखा x+4, तो इसका ग्राफ बनाया ऐसा कुछ, राइट, ऐसा कुछ ग्राफ बनाया, रफली बनाया, ठीक है। x+4 तो यहाँ पे कहीं टच करेगा, तो मतलब कि इसके अब यहाँ पे भी टच करा है, लेकिन ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि y कहाँ पे जीरो होता है, x एक्सिस पे, तो ये इसका सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है, राइट। हो सकता है कि सॉल्यूशन ना भी हो, कि टच ही ना करे, जैसे ये देखो ऐसा जा रहा हो कांस्टेंट फंक्शन, ये टच ही नहीं कर रहा, तो हो सकता है सॉल्यूशन ना हो। ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वाड्रेटिक, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी मैं क्या डेप्थ में बात करूंगा जब एक्सरसाइज करूंगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका तो स्ट्रेट होता था, इसका ग्राफ होता है बच्चे ऐसे, बेल शेप में। ठीक है, पैराबोला कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पैराबोला। स्टैंडर्ड फॉर्म एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। अगर आपका ए पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं क्या क्या केसेस हो सकते हैं। सबसे पहले ये हो सकता है, पहला केस, कि इसके दो जीरोस हो। तो देखो दो जगह टच हो रहा है। ये भी हो सकता है कि दो जीरोस हो, लेकिन ये नीचे की तरफ ऐसे डाउनवर्ड हो। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल। बोलो, हो सकता है, नहीं हो सकता? इसमें एक ही वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। जब एक ही वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है तो मतलब ये पॉजिटिव होता है, तो ऊपर की तरफ जाता है, और नीचे की तरफ ऐसे होता है। अच्छा, कोई से भी कहीं पे भी बन सकता है, बाय द वे हो सकता था यहाँ पे बने, राइट। तो याद रखना इस चीज का कि इस तरीके से, लेकिन अगर ये कहीं और बनेगा तो जीरोस नहीं होंगे, अभी देखना कैसे नहीं होंगे। अच्छा, ये हो गया जब दो जीरोस होंगे, दो जीरोस। अच्छा, व्हाट इफ अगर ऐसा होता, पहला बोला एक ही जगह टच करता ऐसे, ये, या फिर मान लो कहीं भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, बिल्कुल नेगेटिव जीरोस भी हो सकते हैं। मान लो ऐसे टच कर रहा है एक ही जगह, तो अब कितने जीरोस होते? अब एक जीरो होता, देखो एक ही जगह टच कर रहा है, वन जीरो। ठीक है। हालांकि ये जो जीरो होते हैं रिपीटेड होते हैं, लेकिन हम एक ही काउंट करते हैं। वो मल्टीप्लिसिटी एक टॉपिक होता है, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझो कि एक ही जीरो है। और व्हाट इफ ये एक्सिस को टच ही नहीं करता है, ऐसे बिल्कुल ये, और फिर ये, तो भाई बताओ, नो जीरो, कोई टच ही नहीं कर रहा है, नो जीरो। इनको इमेजिनरी भी कहते हैं, इमेजिनरी जीरो। तो मतलब हमने देखा कि क्वाड्रेट, अच्छा बच्चों को ये लगता है, तो पढ़ाया जाता है बच्चों को, जितनी डिग्री होता है उतने ही जीरोस होंगे, नहीं। डिग्री हमें एटमोस्ट देता है, एटमोस्ट जीरोस। मतलब अगर मान लो लीनियर है, लीनियर की डिग्री क्या होता है, वन, तो उसके एटमोस्ट वन जीरोस होंगे। हो सकता है जीरो हो सकता है एक हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। अगर क्वाड्रेटिक है तो डिग्री टू होती है, तो उसके एटमोस्ट कितने होंगे, एटमोस्ट उसके होंगे टू। मतलब जीरो भी हो सकता है, एक भी ना हो सकता है एक ही हो सकता है दो। तीनों केसेस हमने यहाँ पे देखे, हो सकता है एक भी ना हो सकता है एक ही हो सकता है दो हो। तो एटमोस्ट होता है डिग्री का मतलब, ये एमसीक्यू में बोर्ड में आ रखा क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर डिग्री इतनी होती है तो बताओ उसके कितने जीरो होंगे। एसोसिएशन रीजनिंग पूछ रहे, तो एटमोस्ट का हम याद रखना, एटमोस्ट। अगर क्यूबिक होता है, क्यूबिक का ग्राफ बेटा कुछ ऐसा होता है, क्यूबिक का ग्राफ, थोड़ा सा रफ आइडिया से, ठीक है। ऐसा कुछ एक रफ सा आइडिया दे दिया हमने, ठीक है, और थोड़ा सा और ये बिल्कुल टच करता है इसको ऐसे, ये ऐसा होता है क्यूबिक का ग्राफ। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तीन जगह टच होता है, अगर केयरफुली और जूम आउट करके देखेंगे तो ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है एक्चुअली।
तो मतलब कि अब इसमें 3 हो सकता है कि एक भी ना हो, तो इसमें एटमोस्ट में क्या होगा, इसमें एटमोस्ट में 3 होगा, होगा कि 0 एक भी ना हो, एक हो सकता है 2 हो 3 हो, ये आपको याद रखना है ये वाली चीज, ठीक है। अब ग्राफ का थोड़ा और फंडा सामने आया है, डिटेल में ग्राफ में आपको जब मैं ग्राफ वाला एक वीडियो बना रहा हूँ उसमें दिखाऊंगा मैं आपको कि ग्राफ बनाते कैसे हैं क्या होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में भी है नहीं। अगर आप कंपटीशन लेवल करना चाहते हैं तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। बाय द वे, कभी कभार अगर आपको जानना है कि ये जो वर्टेक्स होता है, एक बता रहा हूँ वैसे मैं आपको, ये कॉम्पिटिशन के, ये जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स अगर निकालना हो ना कभी, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा ये वैल्यू होती है, अब वाई कोऑर्डिनेट निकालना हो तो ये वैल्यू डाल के वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो आप, ठीक है। ये बात अभी के लिए ऐसे ही रखो, इसको मैं डिस्कस करूंगा, जैसे कि आपको वर्टेक्स पता लगाना है तो आप एक्स कोऑर्डिनेट ये रखो, जैसे मान लो मैंने दिया वाई इक्वल टू 4x², ठीक है। अब मुझे पता लगाना है यहाँ पे 4x² प्लस 5 मान लो, ऐसा कुछ दे दिया, मुझे पता लगाना है कि ये इसका जो है वर्टेक्स कहाँ होगा, तो आप क्या करोगे, कंपेयर करके, कंपेयर करके इस ये वैल्यू निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा वर्टेक्स कहाँ पे है, और फिर y जो है y इसी से आ जाएगा, ठीक है। अब ये सब बहुत डिटेल की बातें कर रहा हूँ, लेकिन अभी ये सब आपके सिलेबस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो, तो अब बात की, मैं ये सब इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बेटा इससे केस स्टडी का क्वेश्चन बनता है और उसमें वर्टेक्स वर्टेक्स काम आता है, तो जब केस स्टडी कराऊंगा जवाब देते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज की, आपको फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इजी लगने वाली है भाई, मतलब हद से ज्यादा इजी। ये अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम्पलर के हम करेंगे बाद में, एग्जाम्पलर भी करेंगे, पहले एनसीईआरटी करेंगे, ये पैटर्न चलेगा हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। इसमें कितने जीरोस हैं, कांस्टेंट फंक्शन है बाय द वे, तो इसमें नो जीरोस, जीरो है, एक भी नहीं है। इसमें देखो कहाँ टच हो रहा है, यहाँ पे, अब कोई बोले यहाँ पे टच हो रहा है, नहीं, एक्स एक्सिस पे तो एक जीरो, यहाँ पे एक दो तीन जीरो, यहाँ पे एक दो, दो जीरो, यहाँ पे एक दो तीन चार, चार जीरो, यहाँ पे एक दो तीन, तीन जीरो, ठीक है भाई। तो ऐसे आपको पता लगाना है। अच्छा, y इक्वल टू पी एक्स के टर्म में है, अगर मान लो ऐसा होता है x इक्वल टू पी वाई, तो आप y x, अब एक्सेस इंटरचेंज हो गई है, मतलब मान लो ऐसा कुछ है ये, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या टर्म है ये, तो यहाँ पे जितना टच अगर ऐसे फॉर्म में दे रखा है, तो y एक्सेस जो अब x एक्सेस बन गया है तुम्हारे लिए इस फॉर्मेट से, तो अब तीन जीरोस होंगे, ध्यान रखना, नो नहीं होंगे जब ऐसे फॉर्मेट में दे रखा है, लेकिन अभी इस फॉर्मेट में है, ठीक है। तो ये बात हमने करी, देखते हैं एग्जाम्पलर के अभी निपटा देते हैं, अगर मेरे पास कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन है यहाँ पे। ये वाला दिख रहा है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं होगा, बेटा क्वाड्रेटिक का तुम्हें ग्राफ बताया था, पैराबोला बनता है राइट, ये भी पैराबोला, ये भी पैराबोला, ये भी पैराबोला, ये पैराबोला नहीं है, तो ये ग्राफ नहीं है क्वाड्रेटिक का, ठीक है। और अभी ग्राफ के क्वेश्चन नहीं है इसमें, तो ग्राफ के क्वेश्चन हम मैं अलग से क्वेश्चन लेके आऊंगा, उसमें करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज के लिए हमें बस इतना ही करना है, हमें पता होना चाहिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हमने करी, कि लीनियर का जो ग्राफ होता है स्ट्रेट होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोला बेल शेप का होता है, क्यूबिक का जो होता है एक्चुअली ऐसे ऐसे डांस करता हुआ होता है, राइट, हमने ये देखा, ठीक है। इसमें जो होता है एटमोस्ट 1 0 होते हैं, इसमें एटमोस्ट 2 होते हैं, और इसमें एटमोस्ट 3 होते हैं, ठीक है। ये हमने मेनली बात करी, जहाँ पे एक्स एक्सिस को टच करता है वो हमें जीरोस देता है, ठीक है, अगर मेरे इस वाले फॉर्म में y इक्वल टू पी एक्स, ठीक है, इतना हमने बात किया बेटा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients. Let's see you in the next video then.